Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर मैं जर्नल का चैप्टर अभी कहने के लिए, तो ये पीछे का जो इंडेक्स है ना, दिस इज़ फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स, जो कॉमर्स बच्चे लेते हैं. बट दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स जो काफ़ी एरियाज़ में आता है, बराबर. अगर आप ये सब्जेक्ट करते हो तो दिस स्पेसिफिक चैप्टर जर्नल जो ऊपर दिया गया है, आप में से काफ़ी लोगों को काम आएगा. सो डोंट थिंक मैं तो 11th का स्टूडेंट नहीं हूँ, क्यों काम आएगा मुझको. नहीं, आपको भी काम आएगा अगर आपकी टीचर कभी आपको ये वर्ड बोले, जर्नल. नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस अराउंड 5 लेक्चर्स बैक, बट जर्नल का मतलब क्या है यही मैंने समझाया नहीं है. हाँ, उसके पहले उसके कनेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके कनेक्शन के कंटेंट में जो जीएसटी होता है, हैज़ बीन कवर्ड अप टिल द लास्ट लेक्चर. टुडे आई विल डिस्कस एंड सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विच इज़ बेस्ड ऑन जर्नल. टिल नाउ इन द भूतकाल हमने क्या क्या बातें की हैं कि एक लेजर इस तरह दिखता है, इसको लेजर कहते हैं, या अकाउंट आप बोल सकते हो. सिंपल, 2 साइड होते हैं, वन इज द डेबिट साइड, अदर इज द क्रेडिट साइड. सो इट इज लाइक 2 रास्ते हैं, डेबिट क्रेडिट. कौन सा रास्ता लेना है, कौन से रास्ते पे जाकर रिकॉर्डिंग करना है, दैट डिपेंड्स वेदर आपको पता है कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. मैनी टाइम्स इनका शक्ल आपने देखा है, ओके, गुड या बैड. और मैंने पर्सनल अकाउंट ये मैनी टाइम्स समझाया है. इफ़ एनीबडी हियर हैज़ मिस्ड आउट, सर पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, आई कैन ओनली डू दिस, नॉट लाइक अ नेता बट लाइक अ टीचर, रिक्वेस्टिंग यू, क्या प्लीज़ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का जो लेक्चर हुआ है एंड एनालिसिस का, ओके, एनालिसिस इन ट्रेडिशनल मेथड, प्लीज़ उसे देख लीजिए. बिकॉज इफ़ यू लुक एट दैट लेक्चर्स and you view them, this particular chapter which I am going to teach for around not 20 lectures, आप बड़े आसानी से समझ जाओगे. So everything on the channel is not haphazard, ये वाला किया फिर भगवान जाने क्या किया, नहीं, सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग के साथ में एक ऑर्डर में किया जाता है. So मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इसके पहले 5 लेक्चर्स ख़त्म हुए और उसके पहले कुछ पढ़ाया गया है, that has a rishta with what you are learning right now. Personal account, because it deals with people, the rule is debit the receiver, credit the giver. Real account में objects होते हैं,
आता है जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड द लास्ट इज खर्चा कमाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्लीज नोट। हाँ सर ये आपने बता दिया कितने टाइम पहले? नो माय डियर, मैंने जब बताया तब वो बताने के लिए था, आज उसको यूज करने के लिए। और आने वाले 20 लेक्चर में, अगेन दो नहीं है, ये 20 लेक्चर है, ओके, मैं ये यूज करूँगा। मैनी स्टूडेंट्स में से और सम स्टूडेंट्स में से, सर 2-3 ना मेरा स्टार्ट का लेक्चर कॉलेज में, कोचिंग क्लास में, आपके यूट्यूब चैनल पे मिस आउट हो गया, तो सर ना जर्नल में नहीं करता। सर आपने इंडेक्स बताया, इंडेक्स में तो सर 10 चैप्टर तक है, तो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिमेनिंग चैप्टर्स। देन माई थिंग इज, वो भी मत करो भाई, ये पूरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान मत दो, ये साल के लिए, आने वाले सारों साल के लिए। रीज़न, बुनियाद, व्हाट डज दैट मीन? फाउंडेशन। व्हाट इज़ अ फाउंडेशन? अ फाउंडेशन इज समथिंग जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। और अगर वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, डिपार्टमेंटल मॉल बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो तभी टिकी रहेगी, क्योंकि आंधी तूफान तो आते ही है ना। बट अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आंधी आए तूफान आए हम टस से मस नहीं होंगे। उसी तरह इफ दिस सब्जेक्ट का ये चैप्टर जर्नल फाउंडेशन है, और अगर आपने उसी को कैजुअली में ले लिया, तो आने वाला पूरा साल और आने वाले बहुत सारे साल आपको बहुत कठिनाई देंगे। ये वाले चैप्टर की गोली हजम करने में बहुत परेशानी होगी। प्लीज़ कृपया करके ये चैप्टर पे ध्यान दें, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, मेरी गारंटी ओके कि आपको ये सब्जेक्ट ये साल और आने वाले साल पसंद आएगा और बढ़िया मार्क्स आएगी। नाउ ये जर्नल दिखता कैसे है? ऊपर एक सैम्पल है मेरे। ये जर्नल के अंदर डेट होता है जो बहुत सिंपल है, आप इसको मार्जिन में बना सकते हो। लास्ट में डेबिट क्रेडिट, ज़्यादा बड़ा नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट में आपको अमाउंट लिखना है, 1 लाख 2 लाख, तो उतना आप गैप रखो। LF अगर मुझे कोई पूछे सर ये क्या है LF, तो मैं बोलूँगा लेजर फोलियो, LEDGER। फोलियो का मतलब पेज नंबर। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स। क्यों सर? आप पढ़ा रहे हो, आप डिटेल में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? क्योंकि ये उसका सही टाइम नहीं है। इसके बाद का चैप्टर में लेजर हमको सीखना है। यस, मैं इतना तो आपको बता सकता हूँ कि लेजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये मेरे पीछे ये लेजर है, और अगर उसमें आप ध्यान दो आपको JF दिखेगा। अच्छा, तो जर्नल है उसमें LF, ये लेजर है उसमें JF। F का मतलब फोलियो, फोलियो का मतलब पेज नंबर। कोई भी चीज़ हमेशा, अगर एक किताब बनती है या ज़ेरॉक्स बनते हैं, पेज नंबर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर पेज नंबर नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन होगा। जस्ट टुडे ऑनलाइन क्लास मेरे बच्चों का चल रहा था, तो टीचर ने उस ऑनलाइन गूगल मीट के क्लास में किसी दूसरे बच्चे को कहा ये पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया, टीचर ने बोला नहीं आप गलत पढ़ रहे हो, नेक्स्ट लाइन। उसने स्टार्ट किया, नहीं नहीं आप गलत पढ़ रहे हो, नेक्स्ट लाइन पढ़ना स्टार्ट किया, नहीं नहीं आप गलत पढ़ रहे हो। अरे कन्फ्यूजन। इतनी बार बच्चा गलती कैसे कर रहा है? क्योंकि बच्चा अलग पेज पे है, टीचर अलग पेज पे है, तो पेज नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये जो JF है ये है जर्नल पेज नंबर, बिकॉज फोलियो FOLIO, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा अगला चैप्टर है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ज़्यादा ऐसा आप तकलीफ ना ले, ओके, और ज़्यादा इसके बारे में सोचे ना, इतना ही समझो कि अच्छा सर ने बताया कि ये एक जर्नल है, ओके। इसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, ऊपर दिया है जर्नल ऑफ। ये क्या है? यहाँ पे या तो दुकानदार का नाम या दुकान का नाम जो आपके क्वेश्चन में देगी हम लोग लिखेंगे, ओके। मतलब जर्नल ऑफ का मतलब है अच्छा रिकॉर्डिंग। मैं आता हूँ, डोंट वरी। ये जो नेम ऑफ डेबिटेड एंड क्रेडिट है उसको कहते हैं ENTRY, एंट्री।
और इसके नीचे बीइंग, हमारे भारत देश में एक बीइंग बहुत फेमस है, बीइंग ह्यूमन, क्योंकि सलमान खान जी जो बड़े फिल्म स्टार है उनका सपोर्टेड एक एस्टैब्लिशमेंट है बीइंग ह्यूमन। तो यहाँ पे हम उसकी प्रमोशन तो नहीं कर रहे, बट बीइंग के आगे जो भी लिखा जाएगा उसको कहा जाता है नरेशन। अ नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन। जब एक पिक्चर की स्टोरी बनती है और लिखी जाती है और जब उसको एक्टर एक्ट्रेस के पास लेकर जाया जाता है, तो एक्टर एक्ट्रेस एक्सपेक्ट करते हैं डायरेक्टर से, बिकॉज डायरेक्टर के पास एक विजन है, वो सोच है कि ये पिक्चर की स्टार्ट मिडिल एंड होगा कैसे, कैसे शूटिंग होगी, कौन से लोकेशंस पे होगी। तो वो डायरेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नरेशन। डायरेक्टर तुम्हारा पिक्चर ना पढ़ा हमने, बट थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो, तो डायरेक्टर उनको उसका नज़रिया समझाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नरेशन। सो अ नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन, आज हम करने वाले हैं। ओके, एंड में सबसे बड़ा सवाल, ये जर्नल होता क्या है? फ्रेंच भाषा में JOUR इज कॉल्ड एज अ डे, एक दिन को बोलते हैं जर। ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि मैंने फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं की है, हाँ, बट अकाउंटेंसी जो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया गया था ना, हाँ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उस ज़माने का है जहाँ पर इटालियन मर्चेंट्स, ओके, इसके पहले हमने लुका डी बार्गो पैसियोली जिन्होंने डेबिट क्रेडिट के रूल्स समझाए थे, हाँ जी, क्योंकि उनके ज़माने से है, जर्नल का वर्ड उनके ज़माने से आया है। जर का मतलब क्या होता है, डे। तो ये जो जर्नल हम लिखेंगे ये होता है डेली रिकॉर्डिंग। आई रिपीट, डेली रिकॉर्डिंग, हर दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे बनेगा और वो ऑर्डर में होगा, 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 5 तारीख, फिर 10 तारीख, फिर 15 तारीख। ओके, लास्ट में जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये कॉपी कैट वाला चक्कर नहीं है। जर्नल में ओरिजिनल, सबसे पहले प्राइमरी कहते हैं उसको, प्राइमरी एंट्री। एंट्री का मतलब रिकॉर्ड। ओके, वॉचमैन कहता है ना, जब आप कोई नए बिल्डिंग में जाओ या ऑफिस में जाओ, सर मैडम प्लीज़ यहाँ पे एंट्री करो, नेम, कहाँ से आए हो, कब आए हो, किसको मिलने का है, मोबाइल नंबर, एंट्री, रिकॉर्ड। ओके, देन और डेफिनेशन, अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड मतलब यूज्ड टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, in a form convenient for their subsequent entry in the ledger. So the next chapter is ledger. ledger में अगर आपको लिखना है, जर्नल आपको सही से करना है। ओके, आगे जाते हैं। ये मैं आपको रूल्स का यूज याद दिला रहा हूं। दिस वॉज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वेरी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट 20 lectures. What was there in analysis for a transaction? Commenced business with cash 50,000. क्या ढूंढने का है, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, क्या ढूंढना है, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या। अच्छा, एक दुकान होता है, आप दुकान हो, मैं भी दुकान हूँ, हम दुकानदार नहीं हैं। आप बिजनेस हो, मैं भी बिजनेस हूँ, हम बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर। उसने क्या दिया, कैश। तो आपको 2 एस्पेक्ट्स में सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देख भाई, एक तो ना कैश कम्स इन, सेकेंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर इज द गिवर, उसका नाम हम कैपिटल लिखते हैं, विच आई बी यूजिंग टुडे एंड आई विल बी यूजिंग दैट फॉर द एंटायर ईयर। एवरी प्रोफेसर हु टीचेस अकाउंट्स इन योर एंटायर लाइफ विल यूज द वर्ड कैपिटल, क्योंकि ओनर का नाम नहीं लिख सकते। ओके, अकाउंट्स इन्वॉल्व, देख एक तो कैश था, दूसरा कैपिटल। अकाउंट्स का कैटेगरी, एक था रियल, दूसरा पर्सनल। रूल क्या थे, रियल का रूल सोचो फिर लिखो, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल का रूल सोचो फिर लिखो, क्रेडिट द गिवर। ऑल ऑफ दिस आपने सोचा नहीं, आपने लिखा, ये याद रखना। देन पता चला कि डेबिट कैश को एप्लीकेबल है, क्रेडिट प्रोप्राइटर, ओके, या तो कैपिटल को एप्लीकेबल है। तो
डेबिटेड में कैश, क्रेडिटेड में कैपिटल। दिस इज हाउ यू एनालाइज्ड, बराबर। आपने रिसर्च किया, लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर देखा एंड यू केम टू नो, देख ऐसा ऐसा सोचो इसको डेबिट करो, वैसा वैसा सोचो इसको क्रेडिट करो। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, ये इमरान है, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया तो पैसे दिए रहेंगे हमने, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है। तो इमरान का नाम याद नहीं रखना। क्यों? अरे नाम क्यों याद रखे, मैं क्यों लिखूं? क्योंकि मैंने तो पैसे दे दिए उसको, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पास। अच्छा, कौन से दो अकाउंट है? देख, दो एस्पेक्ट ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा होता है, पब्लिसिटी पे कंपनीज, प्रोड्यूसर्स, आधा बजट पब्लिसिटी का ही होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ओके, पब्लिसिटी इज बिकम वेरी वेरी बिग, बहुत पैसा देना पड़ता है और कैश गोज आउट। अकाउंट्स पूछे तो एक एडवर्टाइजमेंट और दूसरा कैश। क्लासिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल है, कैश रियल। रूल पूछे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ तक गाड़ी आते आते यू अंडरस्टैंड, देख भाई एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी एनालिसिस का हमने पहले किया है। ओके, ये क्या था? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली है, ये बैंक रिसीवर है और हमारा दुकान से पैसा जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली बैंक इज रिसीवर, कैश गोज आउट। बैंक और कैश अकाउंट पर्सनल रियल। रूल, इफ यू रिमेंबर द रूल यू राइट द रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नाउ यू नो कि बैंक को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट। वन मोर, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील। ये दुकान है, हमने गुड्स खरीदा, उसको परचेज कहते हैं, वो नॉमिनल है। और सुनील गिवर है, कोई तो है सुनील, सप्लायर। सो परचेज अकाउंट सुनील अकाउंट, नॉमिनल पर्सनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। सो ऑल ऑफ दिस इज एनालिसिस, यू डू दिस इन योर माइंड। आज भी वही करना है हम लोगों को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का? टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली आपके हमारे लेक्चर के टाइटल के अंदर दिया गया है। इट सेज जर्नलाइज, जर्नल बनाओ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। तो ये दुकान का नाम है, नरेंद्र जनरल स्टोर। हाउ डू यू प्रिपेयर अ जर्नल? एक पेज पे आराम से बन जाता है, तो आप 2 पेज पे बनाओ, क्योंकि 2 पेज में आपको ये सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब उतना टाइम जाएगा, उतने लाइंस यूज होंगे। सो मे बी लेफ्ट राइट आपकी मर्जी। इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स, दुकान का नाम या तो दुकानदार का नाम, दुकानदार मोस्ट प्रोबेबली नरेंद्र है। जर्नल एंट्रीज, ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं ना। ओके, हाँ, डेट, मार्जिन, डेबिट क्रेडिट रुपीस, लास्ट में 5 डिजिट का। एलएफ बहुत छोटा, मे बी 1 डिजिट लिखने का, क्योंकि नॉर्मली वो खाली रहता है। द मैक्सिमम स्पेस पर्टिकुलर्स के लिए बनाओ, मैक्सिमम स्पेस। नाउ इसमें कैसा रिकॉर्ड करने का? ओके, आज मेरा वो ड्यूटी है आपको सिखाने का। क्वेश्चन में आप पहला पॉइंट पढ़ो, 2019 अप्रैल 1, तो मैं ऊपर डेट में लिख रहा हूं 2019 1 अप्रैल या अप्रैल 1। ओके, क्या लिखना है? नरेंद्र ओनर कमेंस्ड बिजनेस, अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, बिजनेस तो मैं हूं। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, पहले दिखा देता हूं। सोचो ये नरेंद्र है, उसने हमको, हम शॉप है, पैसा दिया। तो आपको आपके दिमाग में एनालिसिस करना है, लिखना नहीं है, दिमाग में। अच्छा, सो एक तो हुआ कैश अकाउंट, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश पे डेबिट का ठप्पा लगा। व्हाट अबाउट नरेंद्र? ओके, ये थोड़ा केरला का नरेंद्र दिखता है।
ये कैपिटल है मतलब नरेंद्र. दिस इज पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट द गिवर. ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी थॉट टू यू कि मैंने ये कैसे किया. ओके, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस. सो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. नाउ व्हाट आई एम शोइंग यू इज इसको लिखते कैसे हैं. पहले डेबिट बाद में क्रेडिट. ओके, देख इस तरह डेबिट लिखते हैं. कैश अकाउंट शॉर्ट फॉर्म अकाउंट का, LF को टच करता हुआ DR विच इज नथिंग बट डेबिट का शॉर्ट फॉर्म. कैश अकाउंट DR. अमाउंट कितना है 80,000. वो तो क्वेश्चन में दिया है. अच्छा, डेबिट ऐसे लिखते हैं. यस, 11th में, 12th में, 13th में, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 10 में इस तरह लिखते हैं. तो फिर क्रेडिट में क्या, हाँ उसका लिखने का तरीका ऐसे है. टू कैपिटल, यू डोंट राइट द वर्ड कैपिटल, सॉरी क्रेडिट. जब आप टू लिखते हो तो समझ जाओ कि वो लाइन में जो दिया है वो क्रेडिट का है. तो मैंने लिख लिया 80,000 क्रेडिट. डेबिट के लाइन में डेबिट का इंफॉर्मेशन, क्रेडिट की लाइन में क्रेडिट का इंफॉर्मेशन. जो लिखा आपने ये 2 लाइन होता है एंट्री. क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग रहते हैं जो अगर वो पढ़े तो वो क्या बोलेंगे, क्या लिखा है कैश अकाउंट डॉक्टर, DR डॉक्टर होता है, टू कैपिटल अकाउंट, व्हाट डज दैट मीन. तो पंगा हो जाएगा. आप बोलोगे यार मैंने बराबर से लिखा है, वो बोलेगा मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है. क्योंकि उसने, वो कॉमर्स का बच्चा नहीं है, उसने अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं की है. देयरफॉर ऐसा हमेशा होता है कि अगर एक पिक्चर जो फॉरेन की है ऑफ अ डिफरेंट कंट्री अदर देन इंडिया, बट अ वेरी फेमस पिक्चर एंड हैज़ वन मैनी अवार्ड्स, अगर वो पिक्चर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाए इंडिया के अंदर और इंडियन पब्लिक बैठ के देख रही है, अरे ऑस्कर वाली पिक्चर, देखते देखते कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे. अरे भाई, इट मे बी इन अ फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच में हो सकता है, जर्मन में हो सकता है, ताइवानीज में हो सकता है, क्या पता कोई फॉरेन लैंग्वेज में रह सकता है. बट द स्टोरी इज गुड, एक्टिंग बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है. कैसे समझे, नीचे सबटाइटल, इंग्लिश में, हिंदी में सबटाइटल. इनफैक्ट नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे तो आपको ऑप्शंस आते हैं, इंग्लिश वाला चाहिए, हिंदी वाला चाहिए, तेलुगु वाला चाहिए, कन्नड़ा वाला चाहिए, गुजराती वाला चाहिए, मल्टीपल सबटाइटल्स का ऑप्शन. यहाँ पे आपको भी क्या वो सबटाइटल डालना है, और वो सबटाइटल स्टार्ट होता है बीइंग से. क्या हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. सो देयर आर मेनी पीपल जो कॉमर्स के नहीं है, साइंस के है, आर्ट्स के है, वोकेशनल स्टडीज किया है, कॉमर्स नहीं किया. तो वो बच्चे ऊपर का जो एंट्री है डेबिट क्रेडिट वो नहीं पढ़ेगी, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. वो नरेशन पढ़ेगी. नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है एवरी टाइम. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो इवन अ ले पर्सन जिसको अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है वो भी बोलेगा अच्छा मतलब दुकान स्टार्ट किया पैसे से, वो तो बराबर है ना, कोई भी दुकान छोटी या बड़ी पैसा तो चाहिए. दिस इज द रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल ऑफ 1 अप्रैल. एक एंट्री ऊपर, एक नरेशन नीचे. नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से. व्हेन यू राइट क्रेडिट, प्लीज वो लेटर राइटिंग में टीचर ने स्कूल में बोला होगा ना, लीव 2 फिंगर स्पेस, उसी तरह लीव 2 फिंगर स्पेस, बाद में 2 लिखना. ओके, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, अगला ट्रांजैक्शन. पॉइंट नंबर 3, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट. पहले मैं तो डायग्राम बता देता हूं बिकॉज दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड अ लॉट बेटर. ये क्या है, ये दुकान है, हमने परचेस किया, वो नॉमिनल है, और ये किरण है, भला आदमी है, बड़ा शरीफियत से खड़ा है. इसमें क्या एनालाइज करो, दिमाग में करो. परचेसेस विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेस को स्टैंप लगा डेबिट,
किरण तेरा क्या, उसने हमको गुड्स दिया, माल स्टॉक दिया, तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो किरण बन गया क्रेडिट. नाउ यू कीप दिस इन योर माइंड and you go to do the recording. Okay, so now on 3rd April, एक लाइन के बाद क्या डेबिट था, परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 40,000. दिस इज हाउ यू राइट. एक क्रेडिट में कौन है, सुनील, नहीं, किरण, जो नाम था वही लिखना है ना, टू किरण 40,000, क्रेडिट द गिवर. अकाउंट्स के बच्चे ये समझेंगे, नॉट अकाउंट्स के बच्चे ये नहीं समझेंगे, तो वो नरेशन के लिए रुकेगी, नरेशन नीचे आएगा. बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, उधारी पे, पैसे आप बाद में दोगे. सो ऊपर आता है एंट्री, नीचे आता है नरेशन. नेक्स्ट 5th, पेड रेंट. वेरी सिंपल, भाड़ा दिया. अच्छा, जब रेंट देते हैं तो दिखता कैसे, ऐसे, बिजनेस है, पैसे दिए, पेड का मतलब पैसा दिया, रेंट. तो रेंट कौन है, रेंट कोई नहीं होता, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इट्स नॉट अ पर्सन. ओके, आपको मिस्टर भाड़ा ऐसे मिलने वाला नहीं है, मिस्टर रेंट मिलने वाला नहीं है, मिसेज, अरे ये देख ये तो रेंट की पत्नी है, मिसेज रेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता. रेंट इज अ एक्सपेंस, उसको करना पड़ता है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ये सब आपको पहले एनालिसिस में आना चाहिए. कैश गया, आपको दिखता है दुकान से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हेन यू राइट द आंसर फॉर विच यू गेट मार्क्स, द डायग्राम इज ओनली माई टेक्निक ऑफ टीचिंग यू, माई टेक्निक, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख लो. टू कैश अकाउंट, यू विल ऑब्जर्व डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट में अमाउंट सेम, डेबिट क्रेडिट सेम. व्हाट इफ अप डाउन होगा, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट के जब एक बयाजी कोई भी चीज वे कर रहा है, इट हैज टू बी द सेम वजन. अप डाउन होगा, आप बोलोगे नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ अगर है तो फिर फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है. यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज इट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बीइंग रेंट पेड, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल. क्या भाई, ये था हमारा काम, हमने रेंट भरा. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो है 10th. सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब उधारी पे बेचा, जो अकाउंट्स में क्रेडिट लिखते हैं वो नहीं है, यहाँ पर उधारी पे बेचा. ओके, ये दिखेगा कैसे, समथिंग लाइक दिस, कि एक दुकान है जो हम हैं, हमने सेल्स किया, सेल्स का मतलब नॉमिनल अकाउंट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचा रहेगा. विकास को उधारी पे पैसा नहीं मिला, तो विकास इज डेबिट द रिसीवर. सो दिस इज द पिक्चराइजेशन. हर एक कहानी जो किताब में होती है, अगर उसका आपको पिक्चर मूवी बनाना है, यू रिक्वायर अ डायरेक्टर, बिकॉज अ डायरेक्टर हैज़ अ विजन. वो सोचता है कहानी में ऐसे लिखा है, बट हाउ डू आई ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन. उसी तरह क्वेश्चन की कहानी को हम स्क्रीन पर ला रहे. सो एनालाइज करो, विकास इज डेबिट द रिसीवर, और सेल्स का मतलब इनकम, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. सो इन माई आंसर the continuation on 10th April, leave a line, will be विकास अकाउंट डेबिट. ये स्टाइल है लिखने का. 55,000 टू सेल्स अकाउंट. व्हेन यू राइट टू सेल्स अकाउंट, लीव 2 finger space. बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास, ऑन क्रेडिट लिख सकते हो. नरेशन में थोड़ा 19-20 चलता है, एंट्री में 19-20 बिल्कुल नहीं चलता, आपको रॉन्ग मिलेगा. नाउ इफ योर पेज हैज़ कम टू एन एंड, इफ अगर आपके पास में 2 लाइनें 3 लाइनें, तो मेरा सजेशन है वो रहने दो, बिकॉज जब भी आप एक एंट्री और नरेशन लिखो, इट हैज़ टू बी टुगेदर, हाफ नहीं होना चाहिए, आधा ये पेज पे आधा वो पेज पे. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ओके, आप नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो.
तो वो क्यों समझ में आएगा। 15 तारीख को परचेस्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 एट GST 18%। GST के वजह से कंफ्यूजन नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इन द लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ GST। आई टोल्ड यू कि GST दो टाइप के होते हैं, CGST एंड SGST। C का मतलब सेंट्रल, S का मतलब स्टेट। तो जो भी दुकान खरीदता है और बेचता है उस पे या तो इनपुट GST या तो आउटपुट। दिस इज परचेस ऑफ फर्नीचर, खरीदा, तो ये इनपुट है फॉर अ शॉप। एवरी शॉप हैज सम और द अदर इनपुट, क्योंकि आउटपुट का मतलब वो जो काम करके कस्टमर को दे रहे, बट वो काम करने के लिए उनके पास भी तो मशीन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास भी लाइटिंग होना चाहिए। ऑल ऑफ दैट इज इनपुट। जब ये सब आएगा तो ही तो आउटपुट होगा। ओके, सिमिलर टू व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। प्रिंट आउट चाहिए तो थोड़ी खाली रहेगा, आप इनपुट करो तो आउटपुट प्रिंट आउट आएगा। सो फर्नीचर को खरीदा, एज फार एज द लुक इज कंसर्न, कि ये दिखता कैसे है। हियर फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट बिकॉज देर इज GST यू हैव टू मेंशन GST। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो भी दो। लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड, इसके लिए वो एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम कर दिया था कि ये जो 18% GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका दो पार्ट होगा, 9 and 9। 9% का GST विल गो टू द दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, ओके, नेशनल गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा, बिकॉज ये जो टैक्स होता है उसका यूज सरकारें करती है अपनी जेब भरने के लिए नहीं, लेट्स थिंक पॉजिटिव, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, वेलफेयर करने के लिए। ओके, हाँ, बेटर एजुकेशन, बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर मेट्रो, बेटर रेल्स, बेटर बसेस, जो भी पब्लिक के लिए किया जाना चाहिए वो ऑब्वियसली टैक्सेस की मदद से होता है। यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में मैं क्या करूँ, देख, पहले तो तू लिख ले फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो राइट अबाउट में, क्योंकि इट विल नॉट फिट इन दीज लाइन्स, तो मैंने ऊपर लिखा नेक्स्ट पेज पे, हाउ मच, 30,000। बाइंग द फर्नीचर इज एन इनपुट, तो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा इनपुट टैक्स। अगर आउटपुट होता तो देयर वुड हैव बीन आउटपुट टैक्स। सो विथ द फर्नीचर, रिमेंबर पूरे चैप्टर में GST है, पूरे प्रॉब्लम में एक बार है बट है। तो अगर आप इनपुट की बात कर रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट इज इट एन इनपुट और इज इट एन आउटपुट। खरीदेगा तो इनपुट, बेचेगा तो आउटपुट, सो सिंपल एज दैट। दुकान में आया तो इनपुट, दुकान में गया तो आउटपुट। पहले आएगा इनपुट CGST, ओके, ये कितना होना चाहिए, देखो 18% बोला था तो ये 9% होना चाहिए। आई रिपीट, ये 9% होना चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ 30,000, दैट कम्स टू 2700, 30,000 का 9%। और जैसे आपने सेंटर को टैक्स दिया, आपको स्टेट को भी टैक्स देना पड़ेगा, वही 9%, 2,700। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट, दिस इज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दुनिया में, भारत में, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो दुकान में जाकर और अगर उसके ऊपर GST है तो आपको बिल में दिखेगा, बाइसिकल, साइकिल इतना प्लस GST, CGST, SGST। तो सेम थिंग ये दुकान में भी हम बता रहे कि फर्नीचर तो है 30,000, बट उसके ऊपर अलग से टैक्स देना पड़ा है GST, क्योंकि ये पूरे भारत देश में हर एक दुकानदार के लिए एप्लीकेबल है। सो
फर्नीचर का हमने जो खरीदारी की 30,000, फिर हमको जीएसटी देना है, CGST SGST 2700 तो पैसा कितना दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टोटल दैट इज 35,400. Very importantly, what you did right now is a combine entry. Combine. What is a combine entry? When you have one debit, one credit. Debit, credit. Simple entry. When you have debit, 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 credit, 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 or debit, 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 credit, credit, or debit, 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 credit. कोई भी combination. More debits, more credits. उसको कहते हैं combine entry. Combine. So हमको दोनों पढ़ना है. Simple, combine. Okay. Then we wrote the narration. Because again, जिसको अकाउंट्स नहीं पता उसको 15 अप्रैल को क्या हुआ पढ़ना नहीं पता. ओके, आगे गाड़ी लेते हैं. ये एक एग्जाम्पल था जीएसटी का जिसमें मैंने इनपुट डिस्कस किया ड्यूरिंग द चैप्टर मूविंग ऑन एंड ड्यूरिंग द सम्स टू फॉलो. लिटिल बाय लिटिल, कभी इनपुट कभी आउटपुट, कभी इनपुट कभी आउटपुट. ये गुड्स पे है, फर्नीचर गुड्स है. कभी कभी सर्विसेज भी हम लेते हैं. प्लम्बर आया उसने सर्विस दिया, इलेक्ट्रिशियन आया उसने सर्विस दिया, तो आई रिपीट उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है. कोई आया टेक्नीशियन एसी को साफ करके गया, उसको भी तो जीएसटी देना पड़ेगा. हाँ जी, ये सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी होता है तो हमको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, ऑन 18 रिसीव्ड अ बेरर चेक 25,000 फ्रॉम विकास. अच्छा, विकास ने हमको एक बेरर चेक दिया. तो ये चक्कर कैसे है? ऐसे कि ये दुकान, अपनी दुकान, ये विकास, उसने हमको एक बेरर चेक दिया. वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ये बेरर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है. और ये चेक का हमने कुछ नहीं किया. एक मिनट, चेक का क्या करने का? अरे बैंक में डालो. बट ऐसा कुछ तो बोला नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं बोला. बेरर चेक हमको मिला पर बैंक में उसको जमा किया, डिपॉजिट नहीं बोला. तो फिर क्या करने का? बैंक में डिपॉजिट मत करो. बराबर है, नहीं किया तो नहीं करेगा. यस. तो फिर क्या करने का? वेल, व्हेन यू गेट अ चेक इट शुड गो टू द बैंक डेबिट द रिसीवर. बट नो, उधर मत गाड़ी लेके जाओ. ये चेक इधर ही दुकान के अंदर है, तिजोरी में रखा है. मे बी बैंक बंद है, पब्लिक हॉलीडे है, संडे है, कुछ तो पंगा है बैंक में, बैंक बंद है. देन व्हाट डू आई डू? देन प्लीज रिमेंबर, एक बेरर चेक कैश ही होता है. वी कॉल इट एज गुड एज कैश बिकॉज व्हेन आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज अ बेरर चेक, कोई भी वो चेक लेके बैंक में जाके खड़ा अगर रहेगा उसको काउंटर पे अपने हाथ में पैसा मिलेगा. क्रॉस चेक का पैसा नहीं मिलता, बेरर चेक का पैसा मिलता है. मीनिंग बेरर चेक इस हाथ में हो या पैसा इस हाथ में हो, सेम होता है. व्हेन यू डोंट डिपॉजिट अ चेक इन द बैंक, तो बैंक मत लिखना. तो क्या लिखना? अज्यूम इट टू बी कैश, कि कैश आया. गलत नहीं है क्योंकि बेरर चेक कैश ही होता है. So you have to say cash comes in shop, debit what comes in. और गिवर कौन है? विकास. क्रेडिट द गिवर. आई रिपीट, बेरर चेक में दिस यूनिक सिचुएशन, चेक आया बैंक में नहीं गया तो क्या करने का? तो कैश समझ के रख लो. ओके, सो हियर गोस. सॉल्व कैसे करें दिखा रहा हूं जी. लिखने में तो बहुत सिंपल है. बैंक का नाम नहीं लिखना, कैश समझना है. कैश अकाउंट डेबिट, ये एक्चुअल चेक है बट बेरर चेक है टू विकास अकाउंट 25,000 बीइंग बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास. वेरी सिंपल. यहाँ पे मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा बिकॉज जो आपको मार्क्स देगा वो यहाँ पे लिख रहे. जो आपको मार्क्स नहीं देगा बाकी का रफ वर्क में अलग कर रहा हूँ. मार्क्स इसके लिए ही मिलेगा. एंट्री नरेशन, एंट्री नरेशन, एंट्री नरेशन. नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस जो मैं थोड़ा थोड़ा अलग कर रहा हूं ना, या जो अलग है क्वेश्चन के अंदर, रिपीट करेगी आगे जाके, रिपीट करेगी. पॉइंट नंबर 21, पेड टू किरण बाय चेक, अगेन चेक ऑफ देना बैंक 20,000. मतलब देना बैंक इज अ बैंक जिसका
चेक हमने किरण को दिया। नाउ कुछ लोग बोलेंगे सर अभी अभी आपने बोला कि चेक अगर आता है तो उसको कैश बना दो। हाँ, अगर चेक आता है, यहाँ पे चेक आता नहीं है, चेक जाता है। आप किरण को चेक दिए देना बैंक का, देना बैंक ऊपर देखो। ओके, तो आई रिपीट, व्हेन यू गिव अ चेक, आप जब किसी को चेक दो तो पैसा आपकी जेब से नहीं बैंक से जाता है। पैसा आपकी जेब से नहीं, रॉन्ग, बैंक से जाता है। तो किरण है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक पैसा देगा, क्रेडिट द गिवर। दोनों पर्सनल है। आई रिपीट, बोथ ऑफ दीज आर पर्सनल। ओके, थोड़ा मैं गलत जगह पे पॉइंट आउट कर रहा था। किरण इज डेबिट द रिसीवर, बैंक इज क्रेडिट द गिवर। व्हेन यू गिव अ चेक टू समवन, सोचो मत आपको सीधा बैंक लिखना है, बट व्हेन यू गेट अ चेक, थोड़ा सोचो क्या किया चेक का, रखा के बैंक में डाला, रखा तो कैश, बैंक में डाला तो बैंक। सोल्यूशन अगेन रेपिटेशन होगा, अगली बार नहीं तो उसके बाद। 20 प्रॉब्लम्स आर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सब चीज कभी ना कभी मैं रिपीट करूंगा। किरण अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, पैसे बैंक से गए, बैंक से। बीइंग पेमेंट मेड टू किरण बाय चेक, कौन सा चेक डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं, सब बेरर दिया, कैश दिया, अरे कुछ नहीं मैटर करता है। डेबिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया, गूगल पे किया, फोन पे किया, अरे कुछ भी करो बैंक से पैसा जाएगा। आज नहीं तो कल बैंक से पैसा जाएगा। लास्ट 30th, I understand the lecture has been very long, but then because this is the first day, मैं उसको summarize नहीं कर सकता, it had to be long, okay? थोड़ा आपको तकलीफ लेना पड़ेगा, okay? Paid salary 5,000, तो दिखता कैसे है, एक मिनट दिखा देता हूँ, डोंट वरी। बिजनेस पैसे दिए, ये सैलरी क्या है, नॉमिनल खर्चा, आपने किसी का सैलरी पगार दिया। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश गया। सो कैश इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आफ्टर यू हैव डन द एनालिसिस इन योर माइंड एंड यू नो व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट, मैं मूव आउट होता हूँ तो आपको वहाँ पे आंसर दिखेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, मेनी ऑफ यू लाइक सर समझ में आ गया, मेनी ऑफ यू लाइक नहीं सर थोड़ी चिंता है, डरो मत ना, प्रैक्टिस करेगी। एवरीबडी डजंट अंडरस्टैंड एट द सेम लेवल एंड एट द सेम टाइम, कुछ लोगों को थोड़ा समझ जाता है, नो प्रॉब्लम्स, ओके, एंड तक सबको समझ में आएगा। बीइंग सैलरी पे, बिकॉज दिस इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, ये 2 पेज पे आपका पूरा सोल्यूशन आ गया, या मे बी 3 पेज पे गए रहेंगे। एंड में आपको ग्रैंड टोटल लिखना है, ऊपर से लेके नीचे तक ऑल द डेबिट्स एंड ऑल द क्रेडिट्स का टोटल आपको लिखना है, ऑल द डेबिट्स एंड ऑल द क्रेडिट्स। सो द फॉलोइंग 2,62,400, ये आपका टोटल है, 2,62,400, जो ऑब्वियसली मैच करेगा, बिकॉज एवरी डेबिट जो आपने लिखा उसका सेम क्रेडिट भी आपने लिखा, ओके। सो ये क्वेश्चन एक बहुत रीजनेबल क्वेश्चन है, बट इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ने को स्टार्ट करेगी, वो अगली बार से करेगी। फॉर टुडे दिस इज इट। इफ़ यू आर अ ओल्ड स्टूडेंट हियर एंड एन ओल्ड फ्रेंड, प्लीज़ कीप शेयरिंग, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाए। दैट इज़ इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।